A very famous cricketer once said, if you want something, if you want to achieve something, you can't be thinking all the time of what you don't have. Cricket, not just a game, but an emotion in India. A game that can make you cry, a game that can make you merry. Cricket is considered to be a religion in India, like football in European countries. Yes, you heard me right. Cricket is a religion, cricketers are gods, and fans are their followers. Every 6 out of 10 teenagers in India wants to be a cricketer, wants to live a cricketing fancy life. But do you really think cricket is as fancy as it looks? Playing cricket in India is different than the world outside. Not because that the population is reaching 1.4 million, but the expectations from the fellow citizens. We have such a tough competition in India, and do we really talk about what a cricketer goes through? What is he going through when he's standing there pitching the ball? What if he didn't get the wicket? He has too many expectations from the population of the country, and his one single mistake can fill the population with hatred against them. That conscious anxiousness and stress that goes around the cricketer, when will the time come that we will talk about it? Just like as we normal human beings have daily life struggles and we go through the mental problems, the cricketers also have a life. They also go through a lot of problems. Why don't we talk about their issues, how their social life is being impacted, how their physical life has been impacted, what actually goes on inside their head? And let's talk about the current situation when they have to play in the stadium with zero audience. There's no motivation even after the fake claps. Do you think that they are at their best potential? We really need to think about the mental well-being of the cricketers as well. There have been many players in the past who have openly talked about how stress in performing matches has led them to depression and anxiety. Starting from or talking about Jonathan Trott, an English cricketer, to our own Indian team captain Virat Kohli. He revealed that during his tour to England back then in 2014, he battled with depression, and how he clearly stated that he felt like the loneliest man in the world. Talking about more on this topic, how players feel and what they go through, we have a former Indian cricketer with us, Praveen Kumar. He's just earned it from Sachin Tendulkar. He was given this cap, and yes. Oh, what a delivery, first ball, what a one. Oh, last innings in the Australian colours. There's the full shot, he's got four, big wicket, got four as well. पहली बात मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और एक मेरठ जैसे छोटे शहर में मेरे लिए एक क्रिकेट फ़ैन होना और आपसे मिलना बहुत बड़ी बात है। तो सर इट्स एन ऑनर टू लाइक हैव एन इंटरव्यू विद यू एंड रियली ग्रेटफुल कि आपने अपना टाइम दिया और हमें आपने अपना साथ दिया। नहीं, आप तो जब मेरठ के हैं तो भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मेरठ जैसे छोटे शहर में, मेरठ जैसे छोटे शहर से एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना, इंडिया के लिए खेलना, तो वो कैसा फील होता है? जब आपने पहली बॉल डाली थी, पहला विकेट लिया था, तो वो कैसा फील हुआ था आपको सर? मैं पहले तो शुरुआत यहाँ से करूँगा कि जिस टाइम हमने स्टार्ट किया उतनी फैसिलिटी नहीं थी। हम खुद ही रोल करते थे, खुद ही पिच बनाते थे, खुद ही सारा काम करना, पानी डालना विकेट पे, तो सब काम हम ही करते थे। मतलब हम विक्टोरिया पार्क में 30 लड़के थे, कुछ एक दो हमारे सीनियर थे, कुछ एक दो हमारे मतलब जो हमारे बाद आए, तो खुद हमने किया, खुद से हमने अपने आप को प्रिपेयर किया। तो वो अलग चीज़ होती है, वो अलग एकदम से कहते हैं ना कि जो हाथ का दस्तकार होता है वो ज़्यादा कमाता है, या जो अपने आप से सीखता है वो ज़्यादा कमाता है, उसे ज़्यादा नॉलेज होती है। तो बहुत अच्छा फील हुआ जब मैंने पहले बॉल डाला, जब माई भाई ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि पहला ओवर उधर से, तो मुझे लेकिन ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई नई बात है, क्योंकि मैं डोमेस्टिक इतना खेल चुका था, इतना एक्सपीरियंस हो गया था, तो ऐसा ना भय लगा ना डर लगा। और जब बात आप कर रहे हैं मेरठ की, जब कि तो बहुत अच्छा फील होता है कि पहला प्लेयर हिंदुस्तान के लिए खेला एज ए क्रिकेटर मेरठ का, तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन अब तो बहुत अच्छे प्लेयर आ गए हैं। मेरे ख्याल में 30-40 लड़के बहुत ट्रॉफी खेल रहे हैं। भुवी खेला मेरे बाद में, करण खेला, फिर एक लड़का था सुदीप त्यागी, वो भी खेला, तो बहुत अच्छा फील होता है।
बिजी हो जाते हैं, क्या हम अपनी पर्सनल लाइफ को साथ में मेंटेन कर पाते हैं? क्या हम अपने माता पिता को या घर वालों को उतना समय दे पाते हैं? और जो हम नहीं दे पाते या दे पाते हैं तो हम उसका बैलेंस कैसे बनाते हैं? और एक क्रिकेटर पे वो क्या, मतलब आपको कैसा फील होता था जब आप दूर जाते थे, या फिर आपको ऐसा लगता था कि मैं कर पा रहा हूँ, मैं अपने मतलब घर वालों को उतना समय दे पा रहा हूँ जितना मेरे को देना चाहिए, या ऐसा कुछ फील होता था आपको? पता है, जब इंसान को कामयाब होना पड़ता है या कामयाब बनने के लिए कुछ होना पड़ता है, करना पड़ता है, तो उसे घर छोड़ना पड़ता है। तो उसे घर की याद नहीं आती उतनी, कुछ करने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही मेरा था, मेरी थिंकिंग वैसी थी कि अगर घर के बारे में सोचा तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मैंने घर छोड़ा, लेकिन 1-2 टूर पे मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे याद है T20 हुआ साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका से गए हम वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ से आए फिर इंग्लैंड। तो वो बहुत हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, नहीं ज़्यादातर प्लेयर के लिए। थोड़ा सा दिमाग ऐसा हो गया था क्योंकि घर की याद आती थी। तो वो बहुत मतलब अपने आप को समझाने वाला, मतलब उसमें आदमी गड़बड़ा रहा था। जेट लैग वैसे हो जाता था तो उसमें पिल्स खानी पड़ती थी सोने के लिए। तो वो बहुत वो था। और मैं 3 या 4 दिन के लिए घर आता था उन समय में। तो लेकिन वो एंजॉय वाले दिन होते थे, अपने यारों दोस्तों के साथ बैठो, अपने यारों दोस्तों के साथ अपना एंजॉय करो, पानी पूरी खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग वो होता था, दिन होते थे। वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले ऐसे सीनियर प्लेयर्स थे। तो उस टाइम पे उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनके साथ कंफर्टेबल होना, कैसा फील होता था? मतलब एक ऐसे ही नहीं लगा कि ये कागज पे तो मैं जूनियर था, लेकिन मैं दिल्ली में वीरेंद्र सहवाग भाई के साथ भी खेला, गौतम भाई के साथ भी खेला। डोमेस्टिक में सब प्लेयरों के साथ खेल चुका था। 1-2 प्लेयर नहीं थे, माई भाई के साथ नहीं खेला, यूवी भाई के साथ खेला, भज्जी भाई के साथ खेला। डोमेस्टिक इतना खेल लिया था तो मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि तू नई जगह है। मुझे फील होता था कि हाँ अपने भाई हैं, लेकिन एज ए सीनियर्स ऐसा लगता था कि हाँ इनसे कुछ रिस्पेक्ट है और इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। ये कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे हाव भाव है, कैसे क्या चीज़ है, कैसे क्या सिस्टम है। क्योंकि आप एक छोटे शहर का लड़का भले डोमेस्टिक भले खेल लिया हो, उसे आइडिया तो हो जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो माहौल कैसा रहता है तो वो नहीं पता होता। तो वो फिर जाके एकदम से उस माहौल में ढलना वो बड़ी बात होती है। लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। एक बार की बात मैं आपको बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया में, अब सबने तो पता नहीं था हमें तो छोले चावल पता था। तो गौतम भाई को मैंने बोला, मैं गौतम भाई मैं कुछ जानता नहीं हूँ, इंग्लिश आती नहीं थी। तो मैं क्या गौतम भाई मैं आपके साथ चलूँ? क्या हाँ हाँ बिल्कुल, तो आ जा। तब मैंने पहली बार सबवे खाया, नहीं तो मैं छोले की दुकान पे ही जा रहा था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मेरी जुड़ी हुई, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब है। जब मतलब एज अ क्रिकेटर आप फील्ड में हो, ठीक है, और आपको पूरी जनता का ध्यान आप पे होता है, और अगर आपको कोई मतलब वो दिया जाए कि ये वाला मतलब बॉल आपको डालना है, तो क्रूशल ओवर आपको दिया जाए, या इन जनरल भी जब आप बॉल डालते हो एकदम स्टार्टिंग में, तो कैसा अंदर क्या वो स्ट्रेस होता है, क्या वो प्रेशर होता है, क्या एक क्रिकेटर के अंदर एंजाइटी आती है उससे, या मतलब कैसे ओवरकम करते हैं वो सिचुएशन को, क्या होती है फीलिंग्स एग्जैक्टली? जब पब्लिक होती है, थोड़ा रहता तो है, पब्लिक है, एक हल्का सा नन्ना सा इतना सा, लेकिन वो कहते नहीं कि जब अर्जुन ने तीर मारा तो सीधी वो आग दिख रहा था। तो वैसे ही होता है, जब आपको क्रूशियल ओवर मिलता है तो आपके माइंड में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये क्रूशियल ओवर है, इस ओवर में इतने रन चाहिए इन्हें बनाने के लिए, तुझे कहाँ बॉल डालनी है, तुझे क्या फील्ड लगानी है, तुझे कैसा सेटअप तैयार करना है, कप्तान से कैसे सेटिंग होनी है कि इधर डालनी है, एक तरफ डालनी है, बीच में डालनी है, जैसे भी। तो वो सब एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है जो हम बनाते हैं, ड्रेसिंग रूम में बना के चलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा डालना है, प्लान ए करना है, प्लान बी करना है। तो वो पहले से तय होता है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि
आपको पता नहीं होता कि 2 ओवर में तो 20 रन चाहिए, पता लगा फिर 6 बॉल पे लास्ट में 6 रन चाहिए, तो उसमें आपको कैसे डालना है, उसमें आपको कैसे करना है। तो वो तो माइंडसेट होता है इंसान का ग्राउंड पे। कुछ चीज़ें बाहर हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अंदर कुछ हो गया, हम तो कुछ सोच के आए थे, अंदर कुछ हो गया, तो वो सब प्लान अपने आप ही आ जाता है ग्राउंड में और फोकस रहता है इंसान कि ये करना है, ऐसे करना। कि ऐसे मतलब क्रिकेटर्स के लिए ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं होती, हमें ऐसे एंजाइटी कुछ नहीं होती जब हम बॉल डाल रहे होते हैं, हम इतना नहीं, कुछ प्लेयर के साथ ऐसा होता है। मैं नाम नहीं लूँगा, एक प्लेयर था, उसका डेब्यू हुआ इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 मुंबई में, और इतना अच्छा बॉलर था वो बेचारा, और वो गड़बड़ा गया। मतलब उससे बॉलिंग हुई, लेकिन जिस टाइप का वो बॉलर था उस टाइप की उसने बॉलिंग करी नहीं, क्या हुई नहीं, वो घबरा गया उसे देख के, माहौल को देख के। उसने कैच भी छोड़ा, फील्डिंग भी मिस की। तो कुछ प्लेयर के साथ हो जाता है, जो मेंटली टफ नहीं होते, थोड़ा सा हो जाता है। पर कोई होता है जो समझता है इस चीज को कि नेक्स्ट मैच देंगे, फिर नेक्स्ट मैच देंगे। बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको बनाया गया, जो पहले परफॉर्म नहीं कर पाए पहले कुछ मैचों में, लेकिन उनमें टैलेंट बहुत था। सेलेक्टर्स ने पहचाना, नहीं इसमें तो बहुत टैलेंट है, ठीक है अभी नहीं हो रहा है, इसको बनाते हैं। प्लेयर बनाने से बनता है, ऐसे नहीं है कि आपने 3-4 मौके दे दिए और फिर वो ड्रॉप हो गया। तो प्लेयर बनाने से बनता है, उसको मौका देना चाहिए। 1 सीरीज, 2 सीरीज, 3 सीरीज, तब प्लेयर बनते हैं। 3-4 प्लेयर है, कैमरा है, नाम नहीं लूँगा। नहीं बिल्कुल हम समझे आपकी बात। कैप्टन का कॉन्फिडेंस होना बॉलर पे या बैट्समैन पे बहुत ज़रूरी है। तो आपकी कैसी रिलेशनशिप थी, कैसी इक्वेशन थी माही भाई के साथ? क्योंकि मैं भाई भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने उन्हें जितना देखा है, मैंने तब जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा तो उनकी वजह से करा, जब आपने डेब्यू करा था तो आपके साथ थे। तो आपका कैसा उनके साथ हमेशा रहा है, कैप्टन के साथ? नहीं, माही भाई बहुत ट्रस्ट करते थे मेरे पे, बहुत समझाते भी बहुत थे, और कुल मिला के बहुत बढ़िया इंसान, कुल मिला के बहुत बड़ा प्लेयर, लेजेंड एक तरीके से। तो बहुत अच्छे रिलेशन थे, जैसे आपने बहुत ही अच्छे थे। सर के अंडर खेले हो आप RCB में, ठीक है, और आप धोनी भाई के अंदर खेले हो, तो आपका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं ये नहीं पूछ रहा था कि कोई बेस्ट है, बट आपकी जो रिलेशनशिप बेस्ट कैप्टन के साथ थी वो माही भाई के साथ थी। अभी रैना के साथ भी थी, डोमेस्टिक में रैना के साथ भी। इससे ये जैसे हमारे को प्लेयर्स होते हैं, हम सब साथ में खेलते हैं, ठीक है, हम साथ में जाते हैं, तो क्या आपस में कोई कंपटीशन भी रहता है? क्या आपस में टकरार भी होती होगी? और टकरार होती है तो क्या एक क्रिकेटर उस चीज़ से परेशान होता है, और परेशान होता है तो क्या वो सॉर्ट हो पाती है, या फिर वो अंदर ही अंदर रहता है? एक हम लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं वहाँ पे, और सब एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई अपने आप को उसमें डाल ले कि हाँ मुझे इससे जलन है या मुझे इससे बेहतर बनना है, बेहतर बनने वाली बात अलग है और जलन वाली बात अलग है। तो होता होगा, हमारे में तो था नहीं। अगर हमारे में ऐसा होता तो हम शायद इंडिया नहीं खेलते। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो सर जैसे कि आज के दौरान में हम सबको पता है कि मेंटल हेल्थ की कितनी इम्पोर्टेंस है और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर क्या हम कभी ये बात ही नहीं करते कि हमारे देश के लिए जो क्रिकेटर्स हमारे लिए हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके जब वो जाते हैं, जब वो फील्ड पे होते हैं, या उनके जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, हम में से न्यूज़पेपर में ये तो छाप देते हैं कि उससे बॉल नहीं डली, ये नहीं, पर हम ये क्यों नहीं बोलते कि हाँ मतलब कि वो परेशान भी था, या हम उस सब बातों के बारे में क्यों बात नहीं करते? क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम में एक साइकोलॉजिस्ट का होना है? अगर है तो क्या वो एफिशिएंसी से वर्क कर पाता है कि हमारी इंडियन टीम की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख पाए? नहीं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। जब मैं खेल रहा था तब पेरी एप्टन साउथ अफ्रीकन थे, वो इसीलिए थे। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। साउथ अफ्रीका जब चैंपियंस ट्रॉफी, शायद हाँ चैंपियंस ट्रॉफी, तो मैं पिछले सीरीज में भी एक दो मैच खेला, जो पीछे हुआ था, और साउथ अफ्रीका में भी 1-2 मैच खेला। तो मैं जाता था, फुटबॉल खेली,
नेट पे बॉलिंग की और होटल वापस टीम के साथ। ये चलता रहा। मैंने बोला पैडी अपटन को, मैं क्या पैडी अपटन साहब, मैं क्या मैं अब वो नहीं करने का प्रैक्टिस। तो बोले क्या हुआ? मैं क्या ऐसे से है, मैं क्या रोज का यही काम है, फुटबॉल खेलनी, बॉल डालनी, फुटबॉल खेलनी, बॉल डालनी, अपना बस होटल चले जाओ। मैं क्या ये है क्या? मैं क्या मैं हो गया। तो फिर उसने मुझे कहा था कि तू अब ग्राउंड पे है, कुछ नहीं करना, बैठना है। तो ये मदद करते हैं, टीम के साथ होता है, ऐसा नहीं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और हमारी इंडियन टीम के पास तो एक से एक बड़े धुरंधर है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, चाहे ये क्या बोलते हैं उसको, नाम ही भूल गया मैं, चलो जो भी है, हाँ ट्रेनर हो गए, और एक और जो मेडिकल स्टाफ, हाँ अरे क्या बोलते हैं, चलो जो भी है। तो सर जैसे में जो भी ये सीज़न चल रहा था, जो मिड में रोका गया है, तो इसमें एक बॉलर था अवेश खान, अगर आपको, हाँ जी, तो अभी उसने विराट कोहली का विकेट लिया, उसने माही भाई का विकेट लिया, तो उसके बाद उसकी इंस्टाग्राम पे, उसके फेसबुक पे, उसकी पिक्चर्स पे लोग कमेंट कर रहे हैं, उसे गालियाँ दे रहे हैं कि आप, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने इतने बड़े प्लेयर का विकेट ले लिया, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब ऐसे। तो एज अ प्लेयर आप, अगर आपको ऐसा कुछ कोई बोलता है तो आप कैसे उसे लेते हो, कैसे कोप अप करते हो? क्या आपके लिए एक मोटिवेशन का तरीका है या कैसे? इंस्टाग्राम तो मैं देखता ही नहीं, फेसबुक तो मैं चला मतलब है ही नहीं मेरा। और लेकिन आवेश खान की जैसे बात है, बड़ा अच्छा बोला रहे हो, मैंने खेला भी है उससे, देखा भी है डोमेस्टिक में। तो गलत, ये बिल्कुल गलत बात है किसी के बारे में ऐसी बातें बोलना, क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े प्लेयर का विकेट लिया है, तो ये अच्छी बात है कि वो इस काबिल है कि वो उनका विकेट ले पाया। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है सर, है अगर मैं क्रिकेट और मेंटल हेल्थ को साथ में लेके चलूं, क्या आपके पास कोई यंग क्रिकेटर्स के लिए कोई मैसेज है कि मतलब, या कुछ भी कि मतलब कि क्या इंडिया के लिए भी एज अ कंट्री ऑल्सो हमें ये समझना होगा कि मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और हमें उसके बारे में बातें करनी चाहिए, मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? मेंटल फिटनेस तो ग्राउंड पे जाके आती है, मैच खेल के जाती है। अगर आप सोच लो कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता रहूँ और हफ्ते में एक ही मैच मिले, तो उससे मेंटल फिटनेस नहीं होती, मेंटल टफनेस भी नहीं होती। आपको हफ्ते में 3 दिन मैच खेलने पड़ेंगे, आपको मार खानी पड़ेगी। जब आप मार खाओगे, उसके बाद में विकेट भी लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अब जब मार पड़ती है तो आपको लगता है, आप कमरे में जाके सोचते हो कि यार आज मुझे 26 रन कैसे पड़ गए एक ओवर में, मुझे पड़े थे चेन्नई में। तो मैं उस रात मेरे ख्याल में 1 घंटा मैंने वो वीडियो देखी, अपने जो वीडियो एनालिस्ट होते हैं उनके पास। मैं कहा यार ऐसे कैसे हो गया। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपको कभी ऐसी मार पड़ी नहीं, तो एकदम से ऐसा हो जाए तो फिर आदमी सोचता है कि ये कैसे हो गया। तो फिर उसको आप एनालाइज करो, कैसे हुआ ये, क्या मैं क्या अच्छा कर सकता था, मैं क्या, तो टफ तो होना पड़ता है। अगर मैं 26 रन पड़ गए यार ठीक है, कोई बात नहीं, मार तो पड़ती है, राइट। कुछ आदमी ये ऐसा भी सोचते हैं, ठीक है T20 है, मार पड़ती है, कोई बात नहीं, वो गलत है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए, थैंक यू।